Every act of service has a story. Every story has the power to inspire. In a world that is always rushing forward, we pause to listen, to learn, and to lead with purpose. Here, conversations go beyond words. They ignite compassion, leadership, and change. This is True Rotarian, where service meets storytelling. I am Hemant Vasin. Thank you for being part of this journey. Let's begin. नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, दिस कैन ऑल्सो हैपन टू यू। आज का ज़माना डिजिटल है, लेकिन सच ये है, इंडिया में हर दिन हज़ारों लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। और सबसे डरावनी बात है, उनमें सबसे ज़्यादा लोग एजुकेटेड है, अवेयर हैं, और फिर भी बस जानते हैं और उसमें फंस जाते हैं। आज मेरे साथ ऐसे ही एक एक्सपर्ट हैं जो साइबर क्रिमिनल्स के दिमाग को समझते हैं, और पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने बहुत लोगों को पकड़ा भी है और केसेस भी सॉल्व किए हैं। फ्रेंड्स, टुडे ऑन ट्रू रोटेरियन पॉडकास्ट वी हैव विद अस अ लेजेंडरी फिगर, Dr. Rakshit Tandon. Namaskar, sir. Namaskar. He is a cyber security professional, a very renowned professional, a consultant with Cybercrime Headquarters, UP Police, advisor to multiple law enforcement agencies, and he's had the privilege of training over 80 lakh youngsters on cyber safety. He works on real cybercrime investigations. Sir, welcome to True Rotarian, my podcast. It's really indeed my pleasure. It's My honor. to find some time and come here. Thank you so much for having me. And मैंने आपका podcast देखे, you are doing a great work. And अगर मैं थोड़ा सा भी इसको contribute करता हूँ, तो it is my honor. Thank you so much, sir. Thank you. And I believe you are in Goa for a very small amount of time. And So I think this is my 5th visit now. And I've been contributing 3 to 4 days. So we're working with this Cogniflux training company, which has been doing these trainings. And I have just concluded my 50th session here. okay. I have covered the police, I have covered schools, colleges, the legislative members. I have covered corporates, like I was with ONGC, then I was with CIPLA and various tourism industry, the tourism guild. So I think I've done 50 sessions now, and this is my 6th visit to Goa now in last 6 months. All thanks to Cogniflux, which has taken up this mission of cybersecurity essentials workshop. And today I have a session with the senior citizens in the afternoon, and then I'm flying back. Okay. Well, thank you so much for finding time. It's our True Rotarian podcast. pleasure is mine. हम स्टार्ट करेंगे उस दौर की जिसने आपको इंस्पायर किया कि साइबर सिक्योरिटी में आपने अपनी जर्नी शुरू करनी है। जी, I started as a cyber software security professional. I was a technology specialist running a small company of my own in my hometown Agra, Uttar Pradesh. And it became very popular that I used to train people. I used to develop software for Agra is a hub for export houses, for shoes, for carpets. और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मुझे इंस्पायर किया जब एक फर्स्ट टाइम एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे ऑफिस में आई कि आप टेक्नोलॉजी जानते हैं। मैंने जी मैं जानता हूँ। आप आईटी एक्सपर्ट है? मैंने जी। बोले हमारे यहाँ एक शिकायत आई है और एक बच्ची को कोई याहू चैट मैसेंजर पे परेशान कर रहा है, क्या आप हमारी उसे ट्रेस करने में मदद कर सकते हैं? वो बच्ची, उनकी मदर, पुलिस ऑफिसर सब मेरे ऑफिस में आए। 10 मिनट का मेरा इंटरेक्शन उस बच्ची से हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चे कितने नाइव हैं, कितने इनोसेंट हैं कि जब ये ऑनलाइन दुनिया में जाते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि उसका चेहरा कैसा है, किससे क्या बात करनी है और कितनी करनी है। वो मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था। और दूसरा मेरा ट्रिगर पॉइंट ये था कि मैंने 15 मिनट के अंदर उस बदमाश को ट्रेस कर दिया, और शाम तक पुलिस ने हमें बधाई दी कि साहब वो पकड़ लिया गया। और उस बधाई से जो उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड किया, तो वो उस दिन से फिर मेरे पास छोटे छोटे बड़े बड़े मामले आने शुरू हुए। एंड दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद लॉ एनफोर्समेंट। एंड देन 2008 वाज माय टेक ऑफ पॉइंट व्हेन हमने पूरे हिंदुस्तान की एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होस्ट करी आगरा में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ। हमारे डीआईजी सर थे कमल सक्सेना साहब,
वो हमारे एसएसपी नवीन अरोड़ा साहब इस समय एडीजी हैं इस समय यूपी में, इन दो लोगों ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस, हम तो गए थे ट्रेनिंग करिए कि भाई एक छोटी सी ट्रेनिंग करा देते हैं, एंड दैट बिकेम अ नेशनल इवेंट। 2000 पुलिस ऑफिसर्स उसमें आए, उन्होंने हमें सुना, हमारा प्रेजेंटेशन देखा, और वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन आई, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो सुन के और देख के चले गए। ये 8 फरवरी 2008 की बात है, हमारे डीजीपी आए थे उस समय, उन्होंने एक आगरा में साइबर सेल स्थापित कर दिया पहला। और उसी दिन थोड़े दिन बाद ऑर्गेनाइजेशन से फोन आता है, कैन यू कम टू दिल्ली एंड मीट अस? मैंने यस सर श्योर। मैं आया दिल्ली, बोले वी हैव दिस स्मॉल प्रोजेक्ट फॉर यू, आपको 2.5 लाख बच्चों को शिक्षित करना है 1 साल में पूरे हिंदुस्तान में, 63 सिटी, छोटा प्रोजेक्ट। छोटा, हम आपको बहुत कम दे पाएंगे मापदंड, द ऑनरेरियम वाज वेरी वेरी लेस, एंड आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आई सेड आई डोंट केयर फॉर द, उस समय मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाऊं, सेंसिटाइज करूं towards a positive internet rather than going into the deep pit of social media जहाँ डार्क साइड है। और वो अपॉर्चुनिटी मुझे सरकार ने दी, वो इट वॉज अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस बॉडी। 2.5 लाख बच्चे, 1800 स्कूल, 63 शहर और करीब 26 राज्य, एंड आई ट्रैवल्ड लाइक एनीथिंग, और मेरा रात तक गला बैठ जाता था। एक एक दिन में आई हैव टेकन 1.5 घंटे की करीब 10 वर्कशॉप्स, और बहुत कम ट्रैवल्स उसमें, बैक टू बैक फ्लाइट्स और ट्रेन्स और पता नहीं बसेस में ट्रैवल किया। और 2010 तक जब ये 2.5 लाख बच्चे पूरे हुए तो पूरे हिंदुस्तान में एक वेव आ गई, एंड देन एक रिकॉल बना, एंड देन द कंपनीज केम टू मी कि आप हमारा भी प्रोजेक्ट करो, एंड दैट इज व्हाट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग माय नंबर। कई एनजीओज ने सपोर्ट किया, पुलिस ने बुलाया, फिर वो सिलसिला रुका नहीं, और अब शायद, तो मैंने गिनना भी बहुत टाइम से छोड़ दिया, 8 या 0.5 मिलियन तो मैं इससे ज़्यादा टच कर चुका हूँ। वही आपके मैंने मैं तो गिनता भी नहीं हुआ साहब, मैंने गिना नहीं। मेरे को कई लोगों ने कहा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? मैंने साहब अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, बिकॉज द वे आई वर्क इज़ कि मेरा 50% टाइम जाता है टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, टू एम्पावर देम, टू ट्रेन देम हाउ टू इन्वेस्टिगेट, और 50% टाइम मेरा कम्युनिटी को जाता है टू एम्पावर देम टू बी सेफ ऑनलाइन। और मैं बच्चों को और बड़ों को, सीनियर सिटीजन्स को, इन सब कैटेगरीज की अलग अलग थ्रेड्स हैं। और जैसा आपने अपने शुरू में कहा ना कि एजुकेटेड लोग, और बिल्कुल सही बात है, मतलब बड़ा अच्छा नहीं लगता है बोलने में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके अभी करीब 3 करोड़ 30 लाख चले गए एक नकली इन्वेस्टमेंट स्कैम में। और हैकर हमारे दिमाग को समझता है और उस हमारी 3 कमजोरियों पे खेलता है, डर, लालच और रोमांस। ये 3 कमजोरियां हैं जिनके ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है। और आप जितने भी ये अभी सुनेंगे जो लेटेस्ट स्कैम्स हैं जिसमें पीपल आर लूजिंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी, एंड अच्छा अभी सिर्फ एक ही फेज देखा जा रहा है। पुलिस क्या देख रही है? पुलिस का काम और गवर्नमेंट का काम है टू कर्ब साइबर क्राइम। टू कर्ब मतलब ऐसे स्टेप्स लाओ जिससे ये रोके, अवेयरनेस करो। एक एंगल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये जो लाखों, अब जैसे लास्ट ईयर के आंकड़े थे 2024 के, 36 लाख विक्टिम्स थे कंप्लेंट्स, तो दैट मीन्स 10,000 पर डे, ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, जिसमें 23 करोड़ रुपया करीब गया, 22 करोड़ 845 करोड़ का नुकसान हुआ। ये जो 36 लाख विक्टिम्स हैं, इनकी मनोदशा आफ्टर एनकाउंटरिंग अ साइबर क्राइम, इट कैन बी रेपुटेशनल, इमोशनल और a financial loss, and especially a senior citizen who is what, 78 years old, who recently lost all his savings, 23 crores, to a fake video call which was a digital arrest scam. Oh my God. मतलब आप सोचो, एक नॉन लिविंग थिंग ने इंसान के दिमाग को कैसा बना दिया कि हम, वो आपने सुना ना, हम लोग क्या कहते थे, वो जैसी संगत हो हम वैसे रंग जाते हैं। हमारी ये जो 24 घंटे की संगत है ना हाथ में, हमने अपने दिमाग को भी वैसा रंग लिया है। That is इट वर्क्स वेरी फास्ट सर। अभी मेरे पास जब से मैं बैठा हूँ साइलेंट है, करीब 12 नोटिफिकेशन आ गए साहब, ठीक है। अगर मैं इसको देख रहा होता तो ये 12 नोटिफिकेशंस मेरे अंदर कोई ना कोई एंजाइटी या कोई इमोशन ट्रिगर करते। अच्छा मैसेज मुझे अच्छा ट्रिगर करता, और स्टार्टलिंग मैसेज, यहाँ पे ये हो गया, गैस की प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे बम गिर गया, वहाँ 100 ये मेरे इमोशंस को हाँ वो करता, डिस्टर्ब। तो आप सोचो हम भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। अरे रुको भाई, हर मैसेज को क्लिक नहीं करना है। आप मोबाइल नहीं हो, मोबाइल आप बन गए हो। यू आर ट्राइंग टू इमिटेट योर मोबाइल। मोबाइल कैन वर्क वेरी फास्ट, उसमें 50 नोटिफिकेशन एक साथ आ सकते हैं। आपका ब्रेन 50 क्या, 2 लोगों की बातें एक साथ प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो हम क्या हो रहा है, उसका फायदा उठा रहे हैं हैकर्स, कि आपको एक मैसेज आया, आपकी गैस कनेक्शन काटा जा रहा है क्योंकि आपका बिल अपडेटेड नहीं है। अब एक तरफ हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि वहाँ प्रॉब्लम हो रही है गैस की,
एक तरफ हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट एडवाइजरीज दे रही है कि गैस को ठीक से यूज़ करो, और एक तरफ ये मैसेज आ रहा है, व्हाट विल आई डू? ये कल सुबह की घटना है। कल जब मॉर्निंग में आई वाज गोइंग फॉर ओएनजीसी, हमारे कॉग्निफ्लस के जो मेंबर है मेरे साथ थे, एंड मैं सारे नॉर्मली कॉल्स, पब्लिक कॉल स्पीकर फोन पे उठा लेता हूँ। आई डोंट वेट कि अगर कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन है देन आई टेक इट। दर्द होता है कान में। मैंने उठाया, बोले सर मैं सो एंड सो प्रिंसिपल बोल रहा हूँ सो एंड सो जगह से, और मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने क्या हुआ? बोले सर वो गैस कनेक्शन, इतना ही बोला उन्होंने, गैस कनेक्शन। आगे का मैंने कंप्लीट कर दिया। मैंने हुआ ये बताइए कितना चला गया? बोले 6.5 लाख। So he clicked on a wrong message and immediately his phone got compromised and he lost. तो मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा सुनिए सर, अगर आप अभी चले जाएं गृह मंत्रालय के पोर्टल पे, मेरे वेबसाइट पे, तो आप देखिए मैंने एक हाथ जोड़ के वीडियो बनाया है। उसको गृह मंत्रालय साइबर दोस्त ने भी शेयर किया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी शेयर किया है, और मैंने भी किया है। बट बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक उस वीडियो को सिर्फ 30,000 लोगों ने देखा है। हाँ, एक वीडियो ज़रूर आया था, वो बड़ा अच्छा था। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग एलिगेंट, यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ। 40 करोड़ लोगों ने देख लिया। सो आई थिंक टुडे इट शुड बी द चॉइस, एंड दैट्स व्हाट आई सेड अबाउट योर पॉडकास्ट। जब मैंने वो सुना आपके, जो आपने मुझे भेजे, दिस इज द कंटेंट विद पीपल टू वॉच। यस, जो इन रियल वर्ल्ड, सर हम खाना बड़ा अच्छा खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, क्यों? हमारी गट हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। यस, है, बड़े कॉशियस हो गए हम। और डिजिटल डाइट के बारे में आप अपने ब्रेन को क्या दे रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ अ फीड यू आर गिविंग? एंड आई थिंक दैट इज वेयर टॉक्सिसिटी। yes, we have to stop and think. I'm not against, these content should reach everybody. तभी तो बचेंगे। अब आपको अगर पहले से पता हो कि ये लिंक पे क्लिक नहीं कर रहा है, तो आपके साथ साइबर अपराध नहीं होगा। करेक्ट। बट वो जो अवेयरनेस हो रही है, वो लोगों को बस अंदर जा नहीं रही है। और अब क्यों नहीं रही है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा आप लोड लेके चल रहे हैं। वेल, दिस इज रियली अमेजिंग दैट कुछ ही सालों में आपने 80 लाख यंगस्टर्स को साइबर सिक्योरिटी के बारे में ट्रेन किया और उनको अपनी मिशन के लिए तैयार किया। एक चीज़ बताइए सर, आज तक का सबसे शॉकिंग केस क्या हुआ है आपके साथ? सो ये वाला मैंने कई बार ये सवाल फेस किया है, और अब तो मेरे लिए हर चीज़ शॉकिंग है। For me, when you people are losing your hard-earned money, or you're losing your reputation, or you're losing your life, so everything is a shocking incident for me. And when digital world is a catalyst to it, तो मेरे हिसाब से जो छोटे बच्चों के साथ होता है, जैसे एक छोटे बच्चे का केस था जो हमने कंट्रीब्यूट किया था उसे ढूंढने में। वो एक गेम खेल रहा था ऑनलाइन, उसने वहाँ दोस्ती कर ली। अच्छा, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स भी समझे इस बात को, कि हम रियल लाइफ में बच्चों को, नाबालिग बच्चों को गाड़ियाँ नहीं देते चलाने को। जब कहते हैं कि कानून जब लाइसेंस देगा तभी आपको गाड़ी मिलेगी। हमने भी ये फॉलो किया। जब हमारा बेटा बड़ा हो रहा था, पापा मैं तो सीख गया हूँ। मैंने नो प्रॉब्लम, यू लर्न, ठीक है, बट टिल द डे यू डोंट गेट अ लाइसेंस यू आर नॉट ड्राइविंग द कार। एब्सोल्यूट। ड्राइवर विल कंपनी नहीं हूँ। मुझे 1-2 बार ड्राइवर ने बताया, बोले भैया चला के ले जाते हैं। मैंने भैया को फिर डांटा। मैंने कहा नो, यू विल ड्राइव द डे यू गेट अ लाइसेंस, यू गेट होम कार्ड। इसी प्रकार से अगर हम असल वर्चुअल वर्ल्ड में भी बच्चों का ध्यान रखें। अब एक बच्चा 17+ गेम खेल रहा है, पेरेंट्स को पता है, दिस इज शॉकिंग। गेम में आप अगर अभी जाओ ना, प्ले स्टोर में कोई भी गेम ढूंढो, तो उसमें एक एज रेटिंग लिख के आती है, वहाँ साफ लिखा है कैपिटल M मैच्योर 17+। वो बच्चा वो गेम खेल रहा है, उसमें एक अनजान आदमी से दोस्ती करता है, और 2 दिन बाद हमारे पास पुलिस की सूचना आती है कि स्कूल से एक बच्चा किडनैप हो गया। ओह माय गॉड। उसको एक अनोनिमस वीडियो से पेरेंट्स को वो मांगा गया है, क्या कहते हैं, रैंसम, और उसमें बच्चों को दिखाया गया है कि दे विल हार्म द चाइल्ड, द होल फैमिली इज इन पैनिक। We start working on it. It took us 2 to 3 hours to get all the digital footprints, locations and blah blah blah, and finally the police was able to crack it, और हमने बच्चे को बचा लिया टाइमली, और वो केस सॉल्व हो गया। तो रात को करीब 2-3 बजे मेरे पास फ़ोन आता है ऑफिसर का कि भाई थैंक यू रक्षित, यू सेव द चाइल्ड। मैंने साहब मैंने कुछ नहीं किया, काम तो सारा पुलिस ने किया, बट आई वुड लाइक टू टॉक टू द पेरेंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इनिशिएटिंग पॉइंट। क्योंकि मैं इतना बच्चों से बात करता हूँ ना सोशल मीडिया और एथिक्स के बारे में, तो मुझे ये केसेस चाहिए टू एक्सप्लेन टू माई किड्स कि देखो क्या डेंजर होता है। इंटरनेट इज नॉट अ प्लेस फॉर एक्सपेरिमेंट। तो जब हमने वो लिंक्स निकाले जो किडनैपर्स को पकड़ा, तो पता चला उनमें से एक किडनैपर का छोटा बंदा गेम खेल रहा था, वहाँ पे ये बच्चा मिला। एंड बच्चों में बड़ा सब में होता है शो ऑफ, तो दिखा रहा है, उससे बात हो रही है, ही इज़ नॉट एबल टू रियलाइज कि वो किससे चैट कर रहा है। मेरे पापा पे मर्क है, मेरे पापा पे BMW है, मेरे पापा का हॉस्पिटल है, मेरी मदर भी डॉक्टर है, मेरे पप्पू भैया ड्राइवर मुझे लेने आते हैं, मैं कभी इस गाड़ी से जाता हूँ कभी इस, एंड ऑल दिस इज रिकॉर्डेड ऑन द चैट विद दैट स्ट्रेंजर, एंड दैट वाज द इनिशिएटिंग पॉइंट।
तो मैं बच्चों को समझाता हूँ, और ये पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों को कौन से टूल्स देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, कहाँ व्हाट इज पेरेंटल। आज हमारी रियल लाइफ में बच्चा बाहर खेलने जाता है तो पता होता है, मम्मी कहती है वो मल्होत्रा साहब के बी ब्लॉक वाले बच्चे के साथ खेलने गया है। पर जब वो ऑनलाइन मिलियन यूजर्स के साथ एक मल्टीप्लेयर गेम खेल रहा होता है, no idea. यू डोंट नो, देयर आर प्रेडिटर्स, देयर आर चाइल्ड प्रेडिटर्स, बार बार अलर्ट होता है, देयर दिस पॉपुलर गेम जिनको कई कंट्रीज ने ब्लॉक कर दिया है। और हमारे यहाँ एक पेरेंट अपने बच्चे को गैजेट भी देता है और गैजेट के साथ कोई प्रोटेक्शन नहीं देता है। वो बच्चा कोई सा भी 17+, 18+, ब्ला 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 जगह चला जाता है। और हाँ, एक बच्चों में दिक्कत ये आ रही है कि इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है। their patience, their tolerance, anxiety levels, emotional intelligence, everything is getting infected. And I think that is what I'm trying to do. I'm not against technology. I'm a pro-technology guy, and I teach children positive internet. I say this internet can make you a hero or a zero. Choice is yours. जो हमारे यहाँ prodigies देखे गए 8-8, 9-9 साल के, जो आज आप AI समिट में देखिए एक बच्चा 8 साल का, he was a speaker. He would talk. Yes, look at his speech and confidence. Absolutely. तो that means technology can, अगर आज आपके पॉडकास्ट को कोई देखे और इंस्पायर हो, जो आप लोगों ने जिन लोगों के साथ किया है, तो मैं समझता हूँ वहां से बच्चा शेप हो सकता है। Anyway, let's come back to some basic questions which I'm sure my audience would like to listen from you. इंडिया में सबसे कॉमन साइबर फ्रॉड कौन सा है सर? 3 या 4 इस समय टॉप पे है। नंबर 1 इज डिजिटल अरेस्ट। दे कॉल यू, दे नो एवरीथिंग अबाउट यू। मिस्टर भसीन, बोले हाँ ये आपका आइडेंटिटी नंबर है, बोले हाँ ये पिताजी का नाम है, बोले हाँ आपका नंबर अपराध में पाया गया है, हमारे अधिकारी आपसे बात करेंगे। एक शॉक दे दिया आपको, आप पे एक वीडियो कॉल आ गया, बाकायदा सेटअप है, पीछे लोगो वोगो बना हुआ है, एक यूनिफॉर्म ऑफिसर बैठा हुआ है, कागज देख रहा है, उसके पीछे सत्यमेव जयते का लोगो शेर का बना हुआ है, ऐसे चश्मा लग। अच्छा भसीन साहब आप ही हैं, लोग तक तो शरीफ रहे। कांस्टेबल खड़ा हो, सर इन्हीं का नंबर आया है सर, इन्हीं के नंबर से वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है, जो बाहर से आया है ना वो वाला। अच्छा ये वही है, बताइए साहब क्या करते हैं ये वो। एंड लिटरली द वे पुलिस कम्युनिकेट इन रियल लाइफ, दे विल टॉक टू यू ऑन दैट वीडियो कॉल, scare you, they will take the name of your children and they will say we can harm them also, so we want to check your accounts। तो चेक अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? आपको मैं प्रिंट आउट देता हूँ, आप चेक कर लो, आप अपना पैसा हमें ट्रांसफर करिए, हम उसे चेक करेंगे। मतलब आई डोंट नो व्हाट हिप्नोटिक ट्रिक, वो हिप्नोटिक कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल है, जिसे कहते हैं ना शॉक एंड रिलीव, ये वाली थेरेपी करते हैं, इतना डरा देते हैं। वो अभी एक बेचारे हमारे रिटायर्ड बैंकर हैं 78 साल के, उनके 23 करोड़ चले गए। मेरे एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब हैं, उनके 5 दिन तक कॉल पे रखा, कॉल तक नहीं काटने देते हैं, 2 करोड़ लेके। और आजकल एक नया चल रहा है, इसी में एक नया टर्न लाए, दे विल मेल यू अ कोर्ट ऑर्डर ड्राफ्टेड एंड दे आर यूजिंग नाउ AI टूल्स, तो बड़ा जेन्युइन लगता है। कोर्ट ऑर्डर सेइंग कि यू आर गोइंग वॉचिंग पोर्नोग्राफी एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू सो एंड सो लॉ, सारे सेक्शन लिखे हुए और नीचे नोटिस 24 घंटे में रिप्लाई करिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, अगर आप में ह्यूमन इंट है, गोवा पुलिस आपको लेटर भेजेगी, तो गोवा पुलिस के लेटर पे मध्य प्रदेश पुलिस का लोगो कैसे हो सकता है? करेक्ट, उस पे साइन डायरेक्टर IB के कैसे हो सकते हैं? तो वो हैकर में अकल नहीं है, उसने वो लेटर भेज दिया अटैचमेंट। आप बस हमारा क्या हुआ है, मोबाइल से विजन ज्यादा तेज चलता है, ब्रेन कम चलता है। आपने नाम देखा रक्षित, तो आपने समझ लिया बाय डिफॉल्ट रक्षित टंडन, आपने आगे पढ़ा ही नहीं, वहां लिखा था रक्षित टोंडन, स्पेलिंग गलत थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो थेरेपी लोग वो ट्रिक यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो बहुत डेंजरस है इस समय, वो है इन्वेस्टमेंट स्कैम। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ना स्कूल में ना कॉलेजेस में, अब जाके सेबी ने ये इनिशिएटिव्स लिए, आई प्रेज द एफर्ट, नाउ सेबी इज गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। हमें नहीं बताया गया था हाउ डू वी डू सेविंग्स एंड फॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, बस सुनते थे, एक्स कंपनी का शेयर ऊपर चला गया, एक्स कंपनी का शेयर नीचे आ गया। हमें इन्वेस्टमेंट में क्या सिखाते थे? तुमने कमेटी डाल दी, तुमने किटी डाल दी। सो पीपल वर नॉट ट्रेन्ड। अब नाम सुन लिए, भाई नाम तो सुन ही लेते ना, क्या मोतीलाल ओसवाल, जीरो धा, फलाना सिक्योरिटीज, ग्रो, ऐसे नाम सुन लिए। वेबसाइट का नाम तो आपको आज भी नहीं पता है। हम बिस्लरी खरीदते हैं, वो हमें बिल्सरी पकड़ा देता है, हम तो स्पेलिंग बिरयानी नहीं देते हैं। इन बदमाशों ने उसको अपॉर्चुनिटी बनाया एंड दे स्टार्टेड द इन्वेस्टमेंट स्कैम एंड पीपल आर लूजिंग देयर हार्ड अर्न मनी। ग्रुप में ज्वाइन कराएंगे, आपसे पैसा लगवाएंगे, शुरू में आपका पैसा डबल करेंगे, आपको एक्चुअली पैसा डबल करके देंगे, और जैसे ही आपकी स्टेक बढ़ेंगी ऐप गायब। तीसरा APK, दिस इज द मोस्ट डेंजरस। व्हाट इज APK? एंड्रॉइड पैकेज किट। सिंपल भाषा में कहूँ तो एप्लीकेशन फाइल होती है जो एंड्रॉइड फोन्स पे इंस्टॉल होती है।
आजकल ये ट्रैफिक चालान के नाम पे, शादी के कार्ड के नाम पे, गैस कनेक्शन के नाम पे, बैंक की केवाईसी के नाम पे कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। फ्री वीआईपी अयोध्या दर्शन तक की बना दी उन्होंने एपीके फाइल। एंड दिस एपीके इज नथिंग बट, हमारी सिंपल भाषा में, इट्स अ वायरस which gets into your computer and it starts SMS forwarding. So whatever SMS are coming to you goes to the hacker. Then it steals your banking credential. उसमें एक ट्रोजन पड़ा हुआ है, वायरस कहते हैं उसको, जो आपके फोन में जितने बैंकिंग एप्स हैं उसके क्रेडेंशियल्स उठा लेता है। और हमारी पूरी डिजिटल बैंकिंग आज ओटीपी पे निर्धारित है। तो अब आपके सारे ओटीपी उस पर चले जाते हैं। तो अभी एक सरकारी अफसर है, अधिकारी, उन पे शादी का कार्ड आया, वेडिंग इन्विटेशन कार्ड .apk, उन्होंने क्लिक किया, उनके 2 लाख रुपए निकल गए। ट्रैफिक चालान से किसी के 4 लाख चले गए। तो ये लोग आजकल व्हाट्सएप पे ये भेज रहे हैं। और अभी ये चूंकि अभी एक रिटायर्ड पेंशनर हैं बेचारे, उन पे पेंशन आती है, उन पे कॉल आया, आपकी पेंशन इस बार नहीं आएगी, आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है। वो घबरा गए, बोले नहीं हमने तो बैंक, बोले साहब वो डिजिटली इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमने आपको फाइल भेजी है, आप इसे ओपन करें और अपना अपडेट करें। उस फाइल का नाम था लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट .apk। उन्होंने जैसे ही क्लिक करा 13 लाख रुपए निकल गए उनके खाते से। तो वो पूरा खाता खाली कर देते हैं। तो ये इस समय लेटेस्ट थ्रेट्स में आता है, 3-4 जो मैंने आपको बताया। और चूंकि अभी मैं गोवा में काफ़ी काम कर रहा हूँ और जहाँ भी जाता हूँ जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे ये एक नया बदमाशी कर रहे हैं कि जो यहाँ के प्रोमिनेंट होटल्स हैं, आप दिल्ली में रहते हो, आपको क्या पता है यहाँ पे जो होटल है उसकी वेबसाइट का नाम क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, वो XYZ hotel-goa.com है या जो भी है। ये लोग उसकी डुप्लीकेट साइट्स बना रहे हैं और वहाँ प्रमोशन से उसको ऊपर ला रहे हैं। तो जो इनोसेंट वहाँ से यहाँ आना चाहता है फॉर अ रूम बुकिंग, जब वो सर्च करता है तो वो फेक लिंक आ जाता है। सपोज माई वेबसाइट इज rakshitTandon.com, वो बना देगा rakshit-tandon.com। इसे इम्पर्सोनेशन भी कहते हैं और फिशिंग भी कहते हैं, कि आप किसी और का चेहरा लगा के बैठ गए। तो अभी जगन्नाथपुरी के अंदर भी करीब 100 टूरिस्ट के साथ ये हो गया। तो ये भी एक क्राइम में आता है, where they are misleading you with fake links. So you have to be very careful with spellings. और एक एक्सपोर्टर्स में भी हम देख रहे हैं जो बिजनेस करते हैं, उसमें ये लोग MIM कहते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक। तो आई एम डीलिंग विद यू, आई सेंड यू अ बिल, यू आर इन यूरोप, कि भाई वसीम साहब ये मेरा इनवॉइस है, इतना पेमेंट कर दीजिए। आप पे मेल आई रक्षित टंडन से, ईमेल आईडी है info@rakshitTandon.com। सब सही चल रहा था, CC BCC सब चल रहा था। एक दिन अचानक मेल आई, सॉरी फॉर द लास्ट मेल, माय बैंक अकाउंट इज फ्रोजन ड्यू टू GST ऑडिट, सो काइंडली ट्रांसफर माय पेमेंट टू माय न्यू बेनिफिशियरी अकाउंट। आपने देखा ऊपर रक्षित टंडन, सेम सिग्नेचर, नीचे इनवॉइस, सब कुछ सेम। आपने CFO को कहा, CFO ने पेमेंट कर दिया। अब 3 दिन बाद हमने कॉल किया, मैंने वसीम साहब पेमेंट नहीं आया। बोले हमने कर दिया। मैंने कहा, बोले इस अकाउंट में। मैंने ये कौन सा अकाउंट है? बोले आपने मेल भेजी, मैंने नहीं भेजी। अब आप भी हिल गए, मैं भी हिल गया। आपने अपनी मेल को जब बाहर खोल के देखा तो जो फ्रॉम में रक्षित टंडन लिखा था, वहाँ नीचे लिखा था info@rakshitTandon.com। स्पेलिंग वाज रॉन्ग, सो यू वर चीटेड इन डाइवर्टिंग द फंड टू अ रॉन्ग अकाउंट। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके किसी एम्प्लॉय ने एक गलत बटन क्लिक कर दिया, उससे एक मेलवेयर आ गया जिसे लिसनिंग कहते हैं। लिसनिंग मतलब वो सुनने लगता है हम दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसने देखा टंडन साहब ने 50,000 यूरो का बिल भेजा है वसीम साहब को, फट से वो एक्शन में आया, उसने एक नकली नाम खरीदा, ईमेल में घुसा बीच में चुपचाप साइलेंटली, और आपको मेल में कह दिया मेरा अकाउंट बदल गया। It's very scary. Yes, it is. So, ladies and gentlemen, what we have so far learned from Rakshit ji, कि कोई डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन आए तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, अपने फ्रेंड्स से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से बात करिए। और अब कभी भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करे तो उसके अंदर भी आप थोड़ा टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड व्हाट वेयर इट इज इट कम फ्रॉम, ओनली देन टेक एक्शन। अभी सर हम अगले पॉइंट पे आते हैं, जो कि OTP फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग एंड UPI स्कैम हो रहे हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि इससे बचना कैसे। तो अभी जो मैंने आपको 3-4 बताए, और ये जो आपने अभी सवाल पूछा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और आप समझ भी जाएंगे। आजकल हम लोगों की जो डिजिटल लाइफ है उसमें रिश्तेदार कम और डिलीवरी वाले घर ज़्यादा आते हैं। एब्सोल्युटली ठीक है, एवरी सेकेंड मिनट द पैकेट्स आर कमिंग। अब आप बैठे हुए और आप पे फ़ोन आया, वसीम साहब बोले ये आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है, हम फलाना नाम लिया बड़े कोरियर कंपनी का, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज आते रहते हैं पैकेट्स। तो बोले मैं क्या करूँ? बोले साहब हमने आपको नंबर भेजा है, आप जल्दी से जो कॉल करिए, वो वहीं घूम रहा है एजेंट, नहीं तो वो वापस चला जाएगा, आपका पैकेट लौट जाएगा। सो ही क्रिएट्स अ काइंड ऑफ अर्जेंसी। Now you open your phone and you see there is a SMS arrived which shows a number. So what is your first response? You dial the number.
अब वो नंबर थोड़ा विचित्र सा है, उसका स्टार्टिंग ऐसे है *21*, 10 डिजिट नंबर और लास्ट में हैश लगा हुआ है। आपने पूछा भी रोक के ये कैसा नंबर है, बोले सर ये ऐप का नंबर है, ऐसे ही मिलेगा, ही कांट डायल यू, यू हैव टू डायल, सो यू रिस्पॉन्डेड एंड यू क्लिक दैट बटन। अब रुकिए साहब, ये कमांड है हमारे मोबाइल की कमांड भाषा में, यूएसएसडी कहते हैं अंग्रेजी में, यूएसएसडी कमांड्स कहते हैं, उनमें से एक कमांड है। इसका मतलब है कॉल डाइवर्ट। मतलब जैसे ही आपने वो बटन दबाया, आपने क्या कह दिया अपने फोन को, मेरी सारी इनकमिंग कॉल उसको डाइवर्ट कर दो। वो घुसा आपके व्हाट्सएप में। अच्छा, व्हाट्सएप पे जैसे ही ऑन करते हो तो वो क्या मांगता है, ओटीपी मांगता है, और आपको 2 ऑप्शन भी देता है अंग्रेजी में, ओटीपी एसएमएस पे चाहिए या कॉल पे चाहिए। चोर ने क्या दबाया, तो कॉल, तो वो डाइवर्टेड ओटीपी किसने सुना, चोर ने। मैं किसके व्हाट्सएप में घुस गया, वसीम साहब के। मैंने एक ग्रुप देखा, फैमिली ग्रुप, उसमें मैंने टाइप किया, आई एम इन एन इमरजेंसी, काइंडली ट्रांसफर 50,000 रुपीज टू दिस अकाउंट। नाउ व्हाट विल हैपन, योर पीपल विल रिस्पेक्ट, और ये साहब प्रॉब्लम में है, कर दो पैसा, योर बिजनेस इज, ये हुआ है, कल हुआ है ये, एक हमें सुनने में है। अब आपने सवाल पूछा, मैंने तरीका बता दिया। बचने का तरीका बताता हूँ। आप व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए, अकाउंट में जाइए, वहाँ एक डबल ताला लगा हुआ है, उसे ऑन कर दीजिए, उसे कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसे इनेबल करिए। वो आपसे एक सीक्रेट 6 डिजिट का कोड मांगेगा, वो सोच के बनाइए, अच्छा सा नंबर बनाइए और उसे ओके कर दीजिए। फिर वो आपकी मेल आईडी मांगेगा, वो इसलिए मांग रहा है कि कल को अगर आप ये कोड भूल गए तो वो आपको याद दिला देगा। आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी डाल दीजिए, उसी के नीचे एक बटन बना होता है पास की, पास की इनेबल कर दीजिए। तो आजकल सभी फोनों में या तो फिंगरप्रिंट लॉक होता है या फेस लॉक होता है, वो उसको रजिस्टर कर लेगा। अब मान लो आपसे ये गलती हो गई, आपने कॉल डाइवर्ट दबा दिया, तो भी वो आपके व्हाट्सएप में घुस नहीं पाएगा। जैसे ही वो ओटीपी डाल के घुसेगा, व्हाट्सएप रोक देगा, वो कहेगा भाई साहब वो 6 डिजिट का कोड बताओ पहले। करेक्ट, और वो उसे पता नहीं है। हाँ, तो आप सिक्योर हो गए। दूसरी बात, अगर गलती से आपसे ये बटन्स दब गए जो मैंने अभी कमांड वाले बताए, तो उसका एक आंसर सुन लीजिए, ##002#, ##002#। ये एक सिंगल कमांड है जो आप अपने जैसे ही फोन पे डायल करते हो, हर तरह के कॉल डाइवर्ट को आप हटा देते हो। दिस इज अ कमांड टू डीएक्टिवेट ऑल काइंड ऑफ डाइवर्ट, सो नाउ यू आर सेफ। तो ये व्हाट्सएप और ओटीपी में आजकल ये वाला तरीका। और दूसरा ओटीपी में आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एपीके फाइल भेज रहे हैं। एपीके फाइल, मैं फिर से रिपीट करूंगा, एपीके फाइल एंड्रॉइड को अटैक करती है। इट्स एन एप्लीकेशन फाइल। हर एपीके फाइल बुरी नहीं होती है, लेकिन जो आजकल ये चला रहे हैं, दिस इज स्कैरी। ये एपीके फाइल को एंड्रॉइड पैकेज किट कहते हैं और इसमें इनबिल्ट एसएमएस फॉरवर्डर होता है। तो और ये हटता भी नहीं है। तो अगर आपसे ये गलती हो गई है तो इमीडिएटली अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट करो या फिर सिम निकाल के रख दो। अगर आपने ये दोनों काम नहीं किए तो आपके जितने भी डिजिटल असेट्स हैं जो ओटीपी कंट्रोल्ड है, वो उसके पास चले जाएंगे। और इसका एक और इलाज आ गया है, व्हाट्सएप ने हमें बचा लिया। व्हाट्सएप ने जब देखा कि इतने फ्रॉड हो रहे हैं, तो सरकार ने कहा व्हाट्सएप से कि कोई उपाय ढूंढो। तो अब आपको व्हाट्सएप में एक नई बटन दिखेगा। आप अपनी सेटिंग्स में जाओ, व्हाट्सएप की एडवांस में जाओ, प्राइवेसी में एडवांस, नीचे बिल्कुल लास्ट में वहाँ एक बटन दिया हुआ है स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग, इसे ऑन कर दो। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, नो अननोन नंबर कैन सेंड यू एन अटैचमेंट, एंड इफ ही सेंड्स यू इट विल बी शोन ब्लॉक्ड। ओके सर, आपको मैं एक बात शेयर करूँगा। 2 दिन पहले, आई वाज इन अ मीटिंग, suddenly I get a call from a very, very articulate, great mannerism, good tone, and a great English. She says, "Good afternoon, Mr. Vasim. How are you doing today?" I said, "Well, and thank you." Normally, I don't pick up these phones, but somehow I was in a meeting and I picked up. She said, "Mr. Vasim, I'm calling on behalf of so-and-so bank. And we have decided to give you a life insurance for 3 crores. At that particular moment, suddenly something came to me. Why is my relationship manager not calling me? I immediately said, I said, "Madam, thank you so much for your, consideration and informing me. Please tell my relationship manager to speak to me or send me an email and I shall take a call. Thank you so much. Have a nice day." And I kept the phone down. Okay. So please tell our viewers, if they also get a call like this, what care should be taken?
मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि भारत सरकार ने एसएमएस को तो कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब आपके पास जो एसएमएस आएंगे उनके हेडर, उसको हम हेडर बोलते हैं, जो बैंक का नाम होता है या इंश्योरेंस कंपनी का नाम होता है, उसके आगे ये लेजेंड सफिक्स होगा, -s, -p फॉर प्रमोशन, -t फॉर ट्रांजेक्शन। इसी प्रकार से अब सरकार ने कहा कि ये जो कंपनीज अगर आपको कॉन्टैक्ट करेंगी तो उनको हम एक डेडिकेटेड सीरीज दे रहे हैं विच विल स्टार्ट विद 1600। और ये अब तो मैसेजेस आने भी शुरू हो गए हम लोगों के पास कि भाई अब इस तारीख से ये ऐसे ऐसे नंबर से आपको अगर कॉल करता है कोई, सो दैट इज अ पर्सन हुज जेन्युइनली कॉलिंग। इसका सिर्फ एक ही तरीका है बचने का। हो सकता है ये कॉल सही हो सकता है वाकई में कोई ऑफर हो, एंड दीज आर मार्केटिंग गाइस, they do their job by calling you and asking you to buy a policy or something because they want investment. हमारा रेड फ्लैग होता है द मोमेंट दे कम टू द क्वेश्चन लाइक अब आपको हमने एक ओटीपी भेजा है, दैट्स अ रेड फ्लैग। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, दैट्स अ रेड फ्लैग टू अ कॉलर व्हाई आर यू गिविंग दो क्रेडेंशियल्स। आप अपना कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का कोड है, CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, वो बताइए, एंड दीज आर द रेड फ्लैग्स। तो कभी भी पहली बात इस कॉल को एंटरटेन ना करें। और अब कई सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपना इंटीग्रेटेड AI सिस्टम लगा लिया है, और उसमें क्या होता है वो आपको पहले ही वार्न कर देते हैं। तो व्हेन द कॉल इज कमिंग आपको वो लिख के आता है। और एक भारत सरकार एक नई चीज शुरू कर रही है, CNIP, और वो कई जगह पायलट के रूप में शुरू हो गया, एंड आई थिंक इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड सून। आपकी सिम और नंबर जिस नाम से इशू हुआ है दैट विल फ्लैश टू द कॉलर नाउ, okay, with the name and the number. So suppose my SIM has been taken by the name of Rakshit Tandon. So if I'm calling you from that number and you don't have my number, it will show it is Rakshit Tandon calling. And now you pick up, सर मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सैमसंग से, आपका ये AC का सर्विस करना था। You will come to know, boss, Rakshit Tandon का नंबर दिखा रहा है and he's saying that I'm calling local. So that is why we are like, these are all called proactive steps सरकार ले रही है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्लीज आप किसी ऐसी कॉल और जासे में ना से। So that means it is very important to know that a government of India is taking proactive steps. Yes. जैसे कि आपने बताया प्रीफिक्स नंबर है, या जो आपने बताया कि वो जो #0022 है, ये तो हमारे सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है, कमांड है, जिससे आप अपनी सारी कॉल डाइवर्ट हटा सकते हैं। So, ladies and gentlemen, please make a note of this. If you get a call from somebody from these numbers, please verify it, take a deep breath, and then only answer the call. So, another question is, deep fake और AI fraud का future इस time में कितना dangerous है? तो वो हमें दिख गया ना, जब से ये AI एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, वी हैव सीन क्राइम बढ़ते हुए। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ AI इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु हैव HI। जैसे अब आई हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस, अब मैं AI का इस्तेमाल करूँ तो मैं जादू कर सकता हूँ। आई कैन सर्व द कम्युनिटी सो वेल, और मैं कर भी रहा हूँ। आई एम यूजिंग AI इन पुलिसिंग, इन इन्वेस्टिगेशन, आई एम ट्रेनिंग द मॉडल इन अ पॉजिटिव सेंस बाय यूजिंग दैट। अब एक मिलिशियस आदमी है विद अ मिलिशियस इंटेंट, और पढ़ा लिखा नहीं है। हमने तो आज 42 लैंग्वेजेस सीखी है, तब जाके कोडिंग सीखी, डेटाबेस सीखा, तो आज हमको लोग टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट बोलते हैं। आई कम बैक सिटिंग हियर विद 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब आज एक बच्चा है जिसने कोडिंग कभी सीखी नहीं, देखी नहीं, मिलिशियस इंटेंट है, और उसको अगर कोई हाथ में मैजिशियन वाली वैंड, जैसे कहते हैं ना, जादुई स्टिक दे दे AI कि राइट अ कमांड टू हैक रक्षित, और वो आपको कमांड लिख के दे दे, तो सोचो ना वो क्या करेगा। तो ये हुआ है। ये जो आपको मैंने APK स्कैम्स के बारे में बताया, ये जो मेलवेयर्स नए नए निकल के आ रहे हैं, जो सोफिस्टिकेटेड कॉल्स और मेल्स आ रही हैं, जो सोफिस्टिकेटेड बैकड्रॉप्स और तस्वीरें बन रही हैं, तो यस, AI हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीजिंग द क्राइम। रोका भी जा रहा है। अब जैसे डीप फेक की बात करें तो मेरे पास एक केस है जिसमें एक सेलिब्रिटी का वीडियो देख के एक भाई साहब के 3 करोड़ 75 लाख चले गए इन्वेस्टमेंट में। एक फेमस क्रिकेटर का नकली वीडियो AI से बना, और उसको देख के पूना में सज्जन के 40 लाख चले गए। कोई डीप एविएटर गेम करके वो प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे थे। आवाज़ उन्हीं की थी, क्रिकेटर की शक्ल उन्हीं की थी, लेकिन वो वीडियो उनका नहीं था। वो, इसको हम लोग सिंथेटिक वीडियोस बोलते हैं। तो अब सरकार ने क्या करा, फरवरी में एक नया कानून पेश किया, उन्होंने ऐड किया अपने रूल्स में कि अगर अब कोई AI से गलत काम करेगा तो हम, जब हमारी पुलिस एजेंसीज उन्हें नोटिफाई करेंगी, तो उन्हें 3 घंटे में उसे पुल डाउन करना होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करा कि आपके पास जो भी अपलोड करे, जैसे आज आप यूट्यूब पे कोई AI वीडियो अपलोड करे, तो आपको नीचे उसे टैग करना होगा AI जनरेटेड, जिससे जो देख रहा हो उसे पहले ही पता हो कि ये AI जनरेटेड है। अभी जैसे मैं आज ही आपके पास आते में एक वीडियो देख रहा था जिसमें 2 सेलिब्रिटीज़ जो हैं एक गैंगस्टर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। इतना रियलिस्टिक वीडियो बनाया है वो कि फर्स्ट 1 सेकंड को आपको लगा ये हो क्या रहा है, एंड देन नीचे देखा, उस पे साफ लिखा था
AI generated. तो यस, AI इज देयर, बट आई थिंक मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है और मैं यंग जनरेशन को कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो फ्यूचर इज AI इज गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर एंड ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर करियर, इन योर वर्क स्टाइल. सो प्लीज फोकस ऑन योर ह्यूमन इंटेलिजेंस. डोंट लेट योर ह्यूमन. मैं बच्चों को कहता हूँ, अभी उस दिन स्कूल में यही गोवा में आई वाज टॉकिंग टू व्हाट 1000 किड्स, आपका ये जो यहाँ पे ऑडिटोरियम है बिल्कुल शुरू में, और मैंने एक सवाल पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू चिल्ड्रन आर डूइंग योर होमवर्क्स विद चैट जीपीटी. 90% ने हाथ उठा दिया. अबे मैंने, अगर चैट जीपीटी होमवर्क कर देगा तो तुम क्या सीखोगे? करेक्ट. तो मैंने, तुम अपनी पढ़ाई को आसान करो, नए सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करो, लेकिन चीटिंग मत करो. कट कॉपी पेस्ट करोगे तो यू आर स्विचिंग ऑफ योर ब्रेन एंड डूइंग. एब्सोल्युटली. सर, 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो लोग डेली करते हैं, वो उसके बारे में कुछ आप वार्न करिए. अपना डिवाइस अपडेट नहीं करते हैं, अच्छा. और ये सबसे बड़ी मिस्टेक मानी जाती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर. आपने कल से दो एक न्यूज़ सुन रहे होंगे कि एप्पल बार बार वार्न कर रहा है. उसने बताया कितने हजार लोग ने अपने एप्पल फ़ोन अपडेट ही नहीं किए हैं, और एक बहुत बड़ा मैलवेयर है जो पहले भी आ चुका है, वो फैल रहा है एप्पल्स को, जो हैक कर सकता है. तो पहला चीज़, और हमारा भारत सरकार का एक बॉडी है सर्ट, वो रोज़ एडवाइजरी देता है. अगर आप अभी भी गूगल पे करोगे ना, सर्ट एडवाइजरी, एंड्रॉइड पे, क्रोम पे, आईफोन पे, मैकबुक पे, आईपैड पे, और उसमें लिखा है हाई सिक्योरिटी वार्निंग. ये वही बात है कि आपका ताला खराब हो गया है मेन गेट का, क्या आप घर छोड़ के चले जाओगे? ठीक कराओगे तभी तो जाओगे. तो ये जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, एप्स जो हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, जब उनके छेद खुल जाते हैं तो उनको अपडेट करना होता है, सो दैट वी पैच इट अप. ओके. तो पहला साइबर हाइजीन गलती जो लोग अपडेट नहीं करते, और उसको रूमर्स फैला दिए लोगों ने, अपडेट करने से फोन स्लो हो जाएगा, तो आप मत करिए. पहला. दूसरा, अपने पासवर्ड चेंज नहीं करते हो, और ज़्यादातर सारे पासवर्ड सेम रखते हैं. 16 बिलियन पासवर्ड लीक हो चुके हैं, डार्क वेब पे पड़े हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है. एक वेबसाइट है, आप खोल के देख लीजिएगा, अपनी आईडी भी चेक कर लीजिएगा, haveibeenpwned.com, PWNED. उस पर अपना ईमेल आईडी डालिए. अगर ग्रीन कलर से 0 लिख के आता है मतलब यू आर ओके, और अगर रेड कलर से लिख के आता है 2 3 4 ब्रीचेस फाउंड, मतलब आपका डेटा लीक पड़ा हुआ है. प्लीज चेंज योर पासवर्ड. ओके. पासवर्ड चेंज करिए. और दूसरी तीसरी गलती जो लोग करते हैं कि वो अपने खातों पे सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं, और मैं इनको खाता नहीं बोलता हूँ, अकाउंट नहीं बोलता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ डिजिटल असेट्स. माई ईमेल इज माई डिजिटल असेट, माई फोन इज माई डिजिटल असेट, माई बैंक इज माई डिजिटल असेट. तो हमेशा डबल ताला लगा के रखिए. उसको हम लोग सिंपल भाषा में कह देते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या अब हम लोगों ने उसको एडवांस कर दिया, वी कॉल इट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो आज मेरे अकाउंट में अगर आपको हैकिंग करना है तो यू हैव टू क्रॉस 5 बैरिकेड्स. पहला है 2 स्टेप, सेकंड इज माय पास की, माय आईज और माय थंबप्रिंट, थर्ड इज आई एम यूजिंग अ हार्डवेयर सिक्योरिटी की. ओके. दिस इज आल्सो अवेलेबल. फोर्थ इज ऑथेंटिकेटर, एक ऐप आता है जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ओटीपीज आते हैं 10 सेकंड्स में. एंड लास्ट इज अ प्रॉम्प्ट. सो सपोज आई हैव 4 डिवाइसेस, आप मेरे फोन में घुस रहे हो तो वो कहेगा मैंने रक्षित टंडन के आईपैड के यूट्यूब में कोड भेजा है, वो बताओ, तब अंदर जाने दूंगा. So that's a kind of a third layer or fourth layer. This is very important. तो आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, बैंक्स हैं, ईमेल्स हैं, प्लीज हैव अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. तो ये 3 चीजें अगर आप कर लेंगे तो यू हैव मेड योरसेल्फ 99% सिक्योर. वो ये जो साइबर सेफ्टी करने के लिए, इसके अलावा कुछ और भी लोगों को करना चाहिए, जो आपने 3 बताए गोल्डन रूल्स, इसके अलावा भी कुछ किसी अननोन फाइल पे क्लिक ना करें, किसी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, अनऑथराइज्ड एप्स इंस्टॉल ना करें. Whoever you are getting into your phone has to be a verified person. आपके घर में कोई भी आ रहा है, you should know his credentials. You're not calling any person on the road and come and sit inside your home and see your home. Similarly, in my phone, if I'm downloading something, I will check the credibility of the app. किसने बनाया है, किस कंट्री का है, उसके रिव्यूज कैसे हैं, वो क्या परमिशंस मांग रहा है मेरे से, क्या वो वैलिड है भी या नहीं है. करेक्ट. एंड देन आई टेक अ कॉल वेदर यू आर अलाउड इन माय फोन और नॉट. सर, एक चीज़ बताइए कि भी अक्सर हम जब एयरपोर्ट जाते हैं या किसी लाउंज में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं. हाउ सेफ इज़ दैट? नहीं है, बिल्कुल नहीं है. पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करने पे देयर आर 2 रिस्क. वन, इट्स अ लीकेज ऑफ योर डेटा which can happen, and 2, anything can be injected also into your network. So I've always advised that it's better, and in हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ हमारे पास अच्छे कनेक्शंस हैं, 5G हैं, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं अपने हॉटस्पॉट के अलावा कुछ यूज़ ही नहीं करता हूँ. करेक्ट.
So I would prefer to use my own connectivity for doing my work rather than connecting to a public network or a hotel network जहाँ पे और भी लोग ट्रैफिक से जुड़े हुए हों और वो कोई गलत इंटेंट रखते हों, क्योंकि वाईफाई सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऐसे ही नहीं दिया जाता है वाईफाई। अभी क्या हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कई जगह होटल्स में जाओ, आप वाईफाई मांगो, सर रूम नंबर इज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ द होटल नेम और पासवर्ड इज़ योर लास्ट नेम। ना दैट मेक्स द रिस्क लेवल हायर। और आजकल के सिनेरियो में तो मैं हमेशा दो चीज़ों पे हमला करता हूँ, पब्लिक वाईफाई एट पब्लिक प्लेसेस एंड चार्जर्स, चार्जिंग पोर्ट्स। इट्स इंपॉर्टेंट टू कैरी योर ओन चार्जर बिकॉज हमें एक क्राइम होता है, उसको कहते हैं जूस जैकिंग। ओके, नाउ व्हाट इज जूस जैकिंग? आप करके देखना, अपना लैपटॉप लेना, उसकी केबल अपने फ़ोन से कनेक्ट करना, अचानक से आपका फ़ोन लैपटॉप पे खुल जाएगा, सो यू कैन सी योर फोन डेटा ऑन योर लैपटॉप। आप समझ रहे हो? तो आई एम अ बैड गाय, मैंने एक चार्जिंग स्टेशन बना दिया बढ़िया सा, एडवेट लगा के केबल से निकाल के छोड़ दी उसमें। और लोग मतलब अपना खाने का ध्यान कम देते हैं, फ़ोन चार्ज ज़्यादा करते हैं। मैंने तो जब भी देखो एयरपोर्ट पे, भाई साहब पूरी कहाँ पे हैं, सब इकट्ठे स्टेशन पे खड़े हुए, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं लोगों को। अब उसी में आपने एक मेलिशियस चार्जर इसमें इंसर्ट कर दिया, यू हैव कॉम्प्रोमाइज योर डेटा। और आजकल हम लोगों के फ़ोन में भाई सब कुछ है, सब कुछ। तो और यहीं पे मैं एक और पॉइंट आपको लाऊंगा जो जिससे मुझे डर लगता है, जो लोग गलती करते हैं। नेवर कीप फोटोग्राफ्स ऑफ योर आधार एंड पैन कार्ड्स इन योर फोटो गैलरी। यू हैव अ क्लाउड, यू कैन कीप इट इन योर क्लाउड इफ यू वांट टू। और गवर्नमेंट ने आपको बहुत अच्छी चीज़ दी है, डिजी लॉकर, उसमें रखो। पहली बात, उसमें आधार प्रोटेक्ट हो जाता है, मास्क होता है, आपको पूरा नंबर नहीं दिखता। दूसरा, आपको वहाँ एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है नॉमिनीज का, आप अपनी फैमिली को नॉमिनी बना दो। कितने हम अनटवर्ड इंसिडेंसेस सुनते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया। अब आजकल सब लोग अपने पॉकेट और बैग्स में अपनी आइडेंटिटीज लेके चलते हैं। अब मेरा आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग इज विद मी। समथिंग गोज रॉन्ग, माय फैमिली इज हैंडीकैप्ड, उनको तो पता भी नहीं होगा मेरी कितनी पॉलिसीज हैं, मेरे कितने अकाउंट्स हैं। आज मेरे डिजी लॉकर में अगर सब है और मैंने अपने परिवार के आधार को उससे लिंक कर दिया है, उसको नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है, तो नाउ इफ समथिंग गोज रॉन्ग, दे हैव एक्सेस टू ऑल माय आइडेंटिफिकेशंस, माय पॉलिसीज, माय हेल्थ आईडी, माय पासपोर्ट डिटेल्स, एवरीथिंग। एंड आई थिंक डिजी लॉकर इज वन ऑफ द थिंग्स। बट फोन में रखने से अगर कल को ये जो एपी के फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिसमें वो पूरा फ़ोन हैक कर लेते हैं और मेरा आधार और पैन लेगा, तो पता चलेगा एक दिन हम, अभी आया एक केस हुआ है मध्य प्रदेश में, 25 साल के बच्चे के पास 46 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। वो कह रहा है मैंने तो अभी कमाना भी शुरू नहीं किया। तो पता चला somebody misused his identity to create a dummy company or some dummy accounts and he did some money laundering in that. So please, your digital identities are your, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, बहुत अच्छी लाइन बोली है, your data is your data. So you have to take care of your data privacy. आप समझ रहे हैं? तो data might be the new oil, but security is your refinery. So you have to take care of it. सर एक चीज़ बताएं, ये फ्रॉड तो हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। आई एम श्योर कि आपके पॉडकास्ट के बाद लोग काफ़ी केयरफुल हो जाएंगे, बट बाय चांस किसी के साथ ये फ्रॉड हो जाए, ये उनको क्या करना है? एक नंबर पूरे परिवार को रटवा दीजिए, क्योंकि जिसके साथ अपराध होता है ना, उस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। मान लो जिसका पैसा चला जाता है, वो उस समय बड़ी अजीब सी मेंटल स्टेट में होता है। सो वन नंबर यू शुड ऑल रिमेंबर इज 1930। 1930। As soon as you realize that you've been a victim to a fraud, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप पहला ये नंबर डायल करें और उसको पूरी जानकारी दें, कहाँ से पैसा निकला, कैसे निकला और कितना निकला। तो ये जो सिस्टम हमने बनाया है ऑनलाइन भारत सरकार ने, इसकी खासियत ये है कि जैसे आप हमें शिकायत करते हो, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और ये सेंट्रलाइज सिस्टम हिंदुस्तान के सारे बैंक्स, मर्चेंट्स और उनसे जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे 1 लाख रुपए निकल गए, तो वो उसको फ्लैग कर देते हैं। और वो जैसे ही फ्लैग करते हैं, तो जिन जगहों वो पैसा मूव किया होता है, उसकी चाल को रोक दिया जाता है। हमारी भाषा में कहते हैं फ्रीज करना। और उसके पास जो विक्टिम है, उस पर एक मैसेज आता है कि भाई आपका जो 1 लाख का नुकसान हुआ था, उसमें से 70,000 रुपीज फ्रीज हो गए हैं। सो नाउ दिस पुअर जेंटलमैन कैन गो टू द पुलिस विल डू द फॉर्मेलिटीज एंड गो टू द कोर्ट विल इशू एन ऑर्डर कि भाई ये 70,000 इनको वापस कर दिया जाए। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। तो ये 1930 बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ये कहते हैं कि साहब 1930 बहुत बिजी है, नहीं मिला, कनेक्ट नहीं हुआ। डोंट वरी, आप परेशान ना हो, एक वेबसाइट खोलें cybercrime.gov.in। वहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड का बटन बना हुआ है, वहाँ जाएं, अपना नंबर और OTP डालें और आपको एक लिस्ट मिलेगी ये भरने की। अच्छा, वो भरने से पहले एक चेक लिस्ट आती है, उसको पढ़ लें जरूर। ये नहीं कि लॉग इन करके बैठ जाएं और फिर परेशान हो, फॉर्म नहीं भरा जा रहा, एरर आ गया। क्योंकि देखिए लॉजिक होता है,
हर फॉर्म भरने में एक टाइम लिमिट होती है, ये नहीं कि आपने सुबह खोला और रात तक भरेंगे, वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देगा उसको। तो आप पहले वो चेकलिस्ट पढ़ लीजिए, यू शुड बी रेडी विद इट। उसमें वो आपसे बैंक की डिटेल्स मांगेगा, आपका एक आईडी प्रूफ मांगेगा, आपके पास उस सिस्टम पे ये सब रेडी होना चाहिए टू सो फाइनली अपलोड सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हो आपको एक ऑटो जनरेट कंप्लेन नंबर मिल जाता है। और उसकी खास बात सुनो, उसकी खास बात ये है, लोग कहते हैं साहब फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोई बताता नहीं है, हमारे को पता ही नहीं चलता। अरे रुको, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। So now once you have submitted your complaint, you got an acknowledgement number with your mobile number and OTP, same website खोलो आप cybercrime.gov.in, वहाँ एक बटन बना हुआ है report and track. You can see the status of your complaint. You can see the officer in charge who is handling your complaint. And you can see what is happening and what is the progress. हाँ, बस इसमें एक ये है पॉइंट, बहुत जल्दी कंप्लेंट करनी होती है कि ऑनलाइन पैसा बहुत तेज भागता है। तो अगर आप इस प्रोसेस में, दिक्कत क्या है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोगों को पता ही नहीं होता है कंप्लेंट। अभी जो कल जिनका फोन आया था, वो कौन सा फ्रॉड हुआ, APK वाला, गैस वाला, उनके 6.5 लाख गए, 3 दिन पहले हो चुका है उनके साथ। अभी बता, उन्हें 3 दिन लगे एक एक्सपर्ट से कनेक्ट होकर राय लेने में। दैट मीन्स ही वाज नॉट अवेयर ऑफ 1930 एंड cybercrime.gov.in। जबकि मैं आपको दिखा सकता हूं कि भारत सरकार MHA की तरफ से हमें SMS बॉम्ब कर रही है। उसमें लिख के आ रहा है, कभी भी साइबर क्राइम कंप्लेंट हो 1930 पे ये वेबसाइट, ये मैसेजेस हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में आ रहे हैं। हम लोग देखते नहीं हैं। सर एक चीज़, लास्ट चीज़ हमारे ऑडियंस को, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को बताइए कि हमारे को कहाँ सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो स्क्रीन टाइम कंट्रोल, छोटे बच्चों में मोबाइल्स के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें टेक्नोलॉजी दो, मैं मना नहीं कर रहा। आप घर पे बढ़िया सा डेस्कटॉप लाइए, उसको लगाइए, गिव देम अ गुड चेयर एंड टेबल एंड लेट देम ऑपरेट टेक्नोलॉजी, लेट देम लर्न, लेट देम एजुकेट देमसेल्फ। बट ब्रिंगिंग देम ऑन सोशल मीडिया बिफोर द राइट एज इज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। उनको दूर रखिए, उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों में डिजिटल डिमेंशिया जैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं पूछता हूँ सवाल, हाँ भाई, अटेंशन स्पैन कम हुआ? हाँ साहब हुआ। याद नहीं रहती चीज़ें? हाँ साहब। रात को ढंग से नींद नहीं आती? नहीं। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, ये हमने नाम सुने भी नहीं थे। बच्चे कह रहे हैं हाँ हमें हो रहा है। Oh hello, this is not a good thing to say. Absolute. So I think we really need to work on this, and I think a lot of governments have started working, and I think Goa is one of the first states who had even brought up this issue in the parliament, saying that should we have a law to ban social media for children below 16? lot of countries have done Already done that. Australia done that, Denmark, Norway, Spain, they're all talking about it because वो देख रहे हैं अपनी यंगर जनरेशन पे उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो मैं ब्लॉक करूं, बैन करूं, वो तो सेकेंडरी है, बट हाँ पेरेंटल कंट्रोल तो मैं कर ही सकता हूँ। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बच्चों को सही चीज़ समझाएं, बड़ों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर से, क्योंकि दिस इज़ वन एज वेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच देम, very difficult to make them remember things because of a lot of reasons, medical reasons, and so the best way the younger generation can protect the senior citizens is by securing their digital assets. So and I've seen there is a lot of usage of digital devices in senior citizens because आजकल के इस युग में families बहुत दूर दूर हैं, बच्चों से आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपको वो इमोशनल डिस्टेंस फील नहीं होता है। 2 मिनट में फेस टाइम आ जाता है बेटे बेटी का, हमारे पोते पोतियाँ हमसे बात कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है उनको। एंड आज ये एक मीडियम बन गया है टू टेक आउट देयर टाइम ऑल्सो, टू स्पेंड देयर टाइम अपार्ट फ्रॉम द सोशल थिंग्स दे डू। तो उनका इंगेजमेंट बहुत है, और उसमें मैं ये सतर्क करना चाहूँगा कि जो मेरे डिजिटल एसेट्स हैं, बैंक, सेविंग्स, और ये वो जनरेशन है जिन्होंने सेविंग्स भी अच्छे से करी है, हाँ बहुत अच्छे करते हैं सेविंग्स का मतलब पता होता है इन लोगों को, और वो है किसका? आप ही तो है, आप ही के परिवार का है। तो उनके वो डिजिटल एसेट्स को एक डमी फोन में अलग से रख दीजिए आप। मतलब आई वांट टू से कि जो मेरा मेन प्राइमरी बैंक अकाउंट है जिसमें आई हैव ऑल माय मनी सेव्ड विद FDs एंड एवरीथिंग, I'll take out that SIM and put it in a small phone only for SMS alert, and I'll take a net banking facility on that. Now I open a new bank account for my senior citizen with a new SIM card. And in that, I keep that much of money which they read on a daily basis. UPI, Zomato, Swiggy, medicine, cab. And what is that amount? It might be varying from 10,000 to 1 lakh rupee a month.
आप अपने प्राइमरी अकाउंट से हर महीने उतना पैसा उसमें रखें, उसमें आप सब यूज करें, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किस में रखें? स्मार्टफोन में। और उसमें व्हाट्सएप नहीं रखे। नहीं, सब रखें, व्हाट्सएप भी रखें उसमें, अच्छा, सब रखें, व्हाट्सएप भी रखें, लेकिन वो बैंक अकाउंट और वो सिम जिससे आपकी मेन एसेट्स कनेक्टेड है, उसको निकाल के एक अलग छोटे फीचर फोन में डाल के रख दीजिए। ओके, सो व्हेन द रिस्क कम, सपोज ही गेट्स हैक्ड, द सीनियर सिटीजन गेट्स हैक्ड, उसको वो डिजिटल अरेस्ट हो गया या एपीके हो गया, इन स्पाइट ऑफ अवेयरनेस, तो जो रिस्क फैक्टर है वो उस मिनिमम स्मॉल अकाउंट का ही तो है। हाँ राइट। कितना है उसमें? 50, 25? जो मेरे करोड़, 10 करोड़ एफडी, 50 लाख जो मेरी सेविंग्स हैं, अनटच्ड है। तो हम ये प्रोसेस अपनाएं, इट इज अ बेटर वे टू मिनिमाइज द रिस्क टू सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि देखिए स्मार्टफोन वो चलाएंगे, और अगर आज आप कहो कि मैं सीनियर सिटीजन्स को सिखा दूं इतनी सारी टेक्निकल चीजें, वो भले 2 घंटे का पॉडकास्ट 10 बार सुन ले, तो उनको वो स्पेलिंग्स, वर्ड्स, एपीकेज, लिंक्स पे नहीं, आप बड़ा मुश्किल है उन पर। तो इट इज बेटर कि मिनिमाइज द रिस्क एरिया, एंड आई थिंक दैट इज द सॉल्यूशन। Well, thank you so much, Rakshit ji. थैंक यू सर, थैंक यू। It has been a pleasure talking to you. सेम हियर सर। On behalf of my entire audience, I thank you from the core of my heart for sharing your wealth of knowledge. We have discussed such important aspects of cybersecurity. थैंक यू सर। Aman, sooner or later, we'll all be victim We all are in that same ecosystem. to the same ecosystem. So, ladies and gentlemen, if you like this video, please do share, subscribe, and if you also have a story to tell, please do get in touch with us. It will be my pleasure, honor to call you on the show. Thank you and Jai Hind. जय हिंद सर, थैंक यू सो Thank मच। you, sir. Thank you. Thank you.